Hello friends, in this video we will cover important case study of the ABM, that is Advanced Bank Management, or important numerical. This is very important for your examination. So see friends, what they have given, they are saying that in the question sample of 75 employees is drawn and find that the portion of 0.4 of them are interested in providing their own retirement plan. The management requests to you to find the interval about which there can be 99% confidence that it contains the true population proportion. So this is the question they have given. So how to solve, how to attempt that question is very easy friends. See the solution. What is the solution? We have to find the interval. We come to know that we have to find the interval. So what is the important formula? That is the standard error of the proportion. What is the formula for the standard error of the proportion? What is the formula for that? See friends, standard error of proportion, it is not the population, it is the proportion. It is nothing but the under root of P into Q divided by N. P into Q divided by N. So how to attempt that? See what they have given sample of 75, that means N is equal to 75. Now they have given 0.4% of the portion, that means they have given the probability, that is 0.4%, that is the probability of success. They have given is the 0.4%, right? Now what next is we have to find Q. What is Q? Q is nothing but the 1 minus probability of success, that is we can say probability of failure. Okay, Q is nothing but 1 minus P, that is 1 minus probability of success. So it is nothing, what it will you see, Q is 1 minus P, that is P is 0.4, so Q will become 0.6. Now see, put that all value simply in the formula. What is formula? Is Q, P into Q divided by N, under root. Okay, see, when you put the values you will get under root of 0.4 is the P, 0.6 is the Q, and divide it by 75 and take a square root of all, right? So you will come to know you have to use the calculator. Here. A simple calculator is allowed in your examination, so you can use for solving the numericals. So always bring a calculator for your examination. So friends, when solve you will get the standard error of the proportion as a 0.75. Okay, now we come to know that standard error of the proportion is 0.57. Now what we have to find? We have to find the confidence level is given 99%. We have to find the interval. Okay, see, what is the here, what is the for 99% confidence level, Z is 2.58. Z, that is the Z value is 2.58, that you can easily remember when you practice. Okay, if you don't remember, they will provide also. Next is part is we have to find the what is the interval. So what is the formula for the interval? Formula is nothing but the formula is P plus or minus 2.58, that is Z into standard error. Formula is P plus or minus 2.58 into standard error. So just simply put the values. P 0.4% given plus or minus 2.58, that is Z into 0.57, that is the we have calculated, right? That is the standard error. So what the answer, you will come to know that when you solve this, we have to take solve to find upper confidence level. To find the upper confidence level, you have to use plus sign. To find the lower confidence level, you have to use the minus sign. So I think you come to know how to solve this type of example. This is very easy. You just need to remember two formula, this first formula and this is the second formula. चलो, तो एक एग्जाम्पल हम आज देखते हैं कि CIB के ABM के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल. तो इसे सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए इस न्यूमेरिकल में उन्होंने क्या दिया है, केस स्टडी के नाम से भी आपको ये एग्जाम में आ सकता है. तो देखिए क्या दिया हुआ है, सैम्पल ऑफ 75 एम्प्लॉइज ड्रॉन टू फाइंड दैट द पोर्शन ऑफ 0.4 ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग देयर ओन रिटायरमेंट प्लान. ओके, VRS की बात हो रही है. तो मैनेजमेंट रिक्वेस्ट यू टू फाइंड द इंटरवल अबाउट विच देम आर 99% कॉन्फिडेंस दैट it contains the true
पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो इस प्रकार का सवाल है। तो हम पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हमको कहीं ना कहीं इंटरवल फाइंड करना है, हमें एक इंटरवल फाइंड करना है। तो इंटरवल फाइंड करना है तो कैसे सॉल्यूशन इसका किया जाता है, कैसे इंटरवल फाइंड किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे गिवन डेटा क्या है। व्हाट इज़ द गिवन डेटा? दे हैव गिवन सैंपल ऑफ 75 एम्प्लॉइज। मतलब हमें पता चला कि वैल्यू जो हमारे सैंपल की n इज इक्वल टू 75 आ गया। नेक्स्ट दे उन्होंने बताया है क्या, द पोर्शन ऑफ 0.4 ऑफ दिन आर इंटरेस्टेड, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी इज 0.4, तो प्रोबेबिलिटी 0.4 दिया है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है क्यू। क्यू क्या होता है? क्यू होता है 1 माइनस पी। 1 माइनस पी क्यों होता है? क्योंकि पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो क्यू हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 100% प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है, राइट। तो क्यू की वैल्यू हमें पता चल गई, दैट इज़ 1 माइनस पी, तो आ जाएगा 0.6। तो बात हो गई यहाँ पे हम यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। तो हमें निकालना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। वो क्या होता है? उसके लिए फॉर्मूला होता है कि पी इंटू क्यू डिवाइड बाई एन एंड होल इज अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट ऑफ P इंटू क्यू डिवाइड बाई एन। तो P की वैल्यू क्या दी हुई है? P की वैल्यू 0.4 दी हुई है, राइट। Q की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? दैट इज 1 माइनस पी, 0.6 आ गई। और हमें पता है n तो 75 दे के रखा है, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर की मदद से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो कैलकुलेटर की मदद से आप इसे 100% सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सॉल्व करिए सिंपल कैलकुलेटर से, आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन आ जाएगा 0.057, और उसको जो आप 0.058 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड एरर। हमें निकालना है कि इंटरवल कितना है। तो 99% कॉन्फिडेंस के लिए जेड की वैल्यू होती है 2.58। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर याद नहीं भी रहेगा तो आपको एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा। और ये आपको अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है ना, तो 100% आपको दिमाग में होगा ही होगा कि जेड की वैल्यू 99% के लिए 2.58 होती है, राइट। तो ठीक है, मगअप कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात है कि हमें निकालनी है इंटरवल। तो इंटरवल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इंटरवल के लिए फॉर्मूला होता है p प्लस माइनस 2.58 इंटू जेड, दैट इज p प्लस माइनस जेड इंटू स्टैंडर्ड एरर, दैट इज द फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में आप क्या कीजिएगा, इसको पुट करिए। जो भी आपको एग्जाम में आया है, यहाँ पे जेड की वैल्यू तो हमें पता है 2.58 है, पी तो हमें पता दिया हुआ है 0.4 है, तो प्लस और माइनस, तो हमने जो एरर निकाला है वो कितना आया है? 0.057, और स्टैंडर्ड 2.58 जेड की वैल्यू है। तो आप सिंपली इस फॉर्मूला में इसे पुट कर लीजिए। और आपका अपर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अगर निकालना है ना, अपर कॉन्फिडेंस लेवल, तो इसके लिए प्लस हमें यूज़ करना है, और लोअर कॉन्फिडेंस लेवल के लिए माइनस यूज़ करना है, राइट। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो आपको ये एग्ज़ाम में 100% ये न्यूमेरिकल आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्ज़ाम में आने की 100% है। तो आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से कीजिए। आपको ये केस स्टडी के नाम पे भी आ सकता है, क्योंकि वीआरएस की बात हो रही है, प्लान वही है, राइट। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन फ्रॉम द टीम ऑफ बैंकर्स जोन फ्रेंड्स, एंड डू द बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बैंकर्स जोन। थैंक यू।